Hey guys, welcome back to our channel. So let's start with the weekly analysis. In this video, basically we'll analyze the monthly chart, weekly chart, daily and the 15 minutes. Basically we understand which time frame tells us what's going to happen most likely. So मैं सिर्फ मेरा एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ इधर. ओके, आई डोंट इंटेंड कोई कॉपी करेगा मुझे या कुछ. तो सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे क्या दिख रहा है. आई कैन सी वन वेरी स्ट्रॉन्ग पिन बार कैंडल लास्ट मंथ. मतलब क्या है, इस मंथ में पुट 0 जाने चाहिए. ओके, बट इसमें 20 डेज हो गए ये मंथ को, तो सारे ऑप्शंस कॉल एंड पुट बहुत मतलब डिके हो गए ऑलरेडी. करंट मंथली कैंडल जो है इट्स अ डोजी 20 डेज का टाइट रेंज में इट्स बीन ट्रेडिंग. ओके, सो इसका मतलब क्या है, वेर एवर दिस रेंज ब्रेक्स वो साइड में डायरेक्शनल मूव आने का प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई. ओके, सो 53,300 ऑन द अपसाइड, 51,700 ऑन द डाउनसाइड. जहां भी ये टूटेगा मोस्ट लाइकली बजट के बाद, एंड निकिता विल कम आउट विद अ वेरी गुड वीडियो फॉर द बजट टुमारो, तो कीप एन आई आउट फॉर दैट. तो वहां पे मूव आने का प्रोबेबिलिटी इज प्रीटी डिसेंट. फर्स्ट थिंग हमको मंथली टाइम फ्रेम से ये समझ रहा है. अभी देखो, लास्ट मंथ के हाई के ऊपर वी आर नॉट ट्रेडिंग, सो इट्स नॉट बुलिश फॉर अस. ओके, लास्ट मंथ के लो के नीचे वी आर नॉट ट्रेडिंग, सो इट्स नॉट बेरिश फॉर अस. तो मंथली टाइम फ्रेम पे वी डोंट फिगर एनीथिंग आउट. हमको सिर्फ इतना समझ रहा है मंथली कैंडल को देख के कि मूव आना चाहिए अभी. ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है मुझे, लास्ट के तीनों वीक देखो आप. ओके, सो दोजी, अनदर दोजी एंड अनदर दोजी. ओके, so what happens यहाँ पे, there's a very 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 high chance if you're selling strangles you might get trapped. okay, यहाँ पे because the price is not moved. मतलब 3 वीक पहले जो ओपनिंग था, आज की क्लोजिंग वही है वीक की. तो ऐसा भी कैंडल we can see now, and same on the upside we can see a bullish candle also. Now I don't know where it's going to go. Okay, so wherever it goes, but there I'm going to align my trade with respect to that trend. So I don't know bullish or bearish, but I want to trade the breakout. So what we can do, okay, simple. First thing is that I think on Tuesday the budget is there. Okay, so till Tuesday I am on a vacation now. मुझे trade नहीं करना market में. That's the first thing. Okay, so Tuesday intraday maybe something I'll do, but I don't think even that. So first of all you have to protect सारे जो loss हो सकते हैं वो days पे not to trade. Okay, so event days मतलब especially मैं बहुत अंडर एस्टिमेट करता हूँ event days को. ये मेरा weakness है. Okay, so to counter my weakness I will not be trading. Now next what I'll do, if I was trading I would trade the breakout of this last 2 weeks high and low. Okay, so last 2 weeks high के ऊपर like I'll play bullish, last 2 weeks low के नीचे I'll play bearish. Now why are we doing this? First of all inside candle बना है. Okay, inside candle means contraction in price, contraction के बाद expansion comes in price. Okay, so this is very simple concept and it keeps working repeatedly. हर बार होता है ये. जब भी प्राइस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है देन बाद का जो मूव आता है इट्स वेरी बिग. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. फॉर एग्जांपल चेक दिस कैंडल. ओके, ये वीक का कैंडल, इट्स अ वेरी स्मॉल लेंथ. ओके, बट इसके बाद प्राइस जूम्ड अप, बहुत जल्दी ऊपर गया उसके बाद. करेक्ट. सो इसमें ये पीरियड में जो भी स्ट्रैंगल बेचेगा मोस्ट लाइकली उसको लॉस होना है. करेक्ट, अनलेस दे नो हाउ टू टाइम द कॉल सेलिंग परफेक्टली हियर. ओके, is good, which is nearly impossible to time. Okay, similarly ऐसे ही छोटी कैंडल मुझे दिख रही है यहाँ पे, जैसे 10th जून वाले वीक में हुई थी. So I think a very very big move can happen right now, and I know कि like we are saying this since the past week as well, but अभी कुछ कर भी नहीं सकते. और मतलब यहाँ पे I cannot tell you कि one more week it will go sideways because the probability of that analysis going wrong is going to be very high. ठीक है, so monthly time frame के कैंडल से don't understand the trend, not trading above previous month high or previous month low high, below that. Weekly time frame पे I understand कि a very big movement should come next week में, या तो आगे जाके next 2-3 weeks में. Okay, so this is my weekly and monthly analysis. डेली चार्ट पर I'll take you is the same thing. यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया है हमको. डेली चार्ट पर we basically found the resistance and support now, so we need one of them to lose now. Like either this resistance should be broken या तो ये सपोर्ट टूटना चाहिए. अभी मूवमेंट अच्छा आना चाहिए इसमें. क्यों मैं बताता हूँ. ये जो रेक्टेंगल का बॉक्स है ना, ये मस्त मूव देगा मेरे हिसाब से. तो wherever it goes. Okay, so we have to be ready to capture that move. ट्रायंगल में ही अगर फंस गए तो फिर एडजस्टमेंट ही करना पड़ेगा पूरा. तो नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए इस वीक में. और एटलीस्ट यहाँ से जब तक वो ब्रेकआउट नहीं आ जाता ना, मतलब तब तक तो आई थिंक वेरी वेरी हाई चांसेस ऑफ स्ट्रैंगलर्स बीइंग ट्रैप्ड. सेम विद 15 मिनट टाइम फ्रेम. पहली बात तो मैंने बताई आपको, ट्रेड ही मत करो. ओके, अभी सेकंड हमको क्या, अगर ट्रेड करना है
तो इस रेंज में मत करो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैंगल जिसने भी बेचा है उससे बहुत अच्छा पैसा बना लिया है, मतलब ओके यहाँ पे। सो अब प्रोबेबिलिटी है डायरेक्शनल ट्रेडर्स की पैसे बनाने की बारी है, मतलब अब तो बेसिकली यहाँ पे वी गॉट अ रेजिस्टेंस टेस्टेड 1 2 and 3 टाइम्स। अगर ये ऊपर में टूटता है तो मस्त मूव आना चाहिए ऊपर में। सपोर्ट में कैसा है, इट्स बेसिकली टेस्टिंग दिस जोन मल्टीपल टाइम्स, ठीक है यहाँ पे। पर व्हाट प्रॉब्लम वी हैव दिस एज अ सपोर्ट 51,750 का जो लेवल है विच इज दिस जोन, दिस इज अ सपोर्ट फॉर अस। तो इवन इफ द सपोर्ट ब्रेक्स आई नीड टू चेक प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है 51,750 के आसपास, बिकॉज दैट विल टेल मी मार्केट मतलब ऊपर जाना चाहिए कि नीचे आना चाहिए, राइट। तो सपोर्ट के आसपास इफ इट कम्स तो वी नीड सम हायर हाई पैटर्न लाइक दिस, और वी नीड अ लोअर लो एट द सपोर्ट। तो वील कम टू नो कि बुलिश खेलना है कि बेरिश खेलना है तब फिर। ओके, सो दैट्स आई थिंक ऑल फॉर बैंक निफ्टी। लेट्स गो टू निफ्टी। निफ्टी का जो मंथली कैंडल है आप चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिंस 9 months इट्स नॉट लाइक क्लोजिंग बिलो इट्स प्रीवियस मंथ्स लो। इसको देख के मुझे क्या लगता है यहाँ पे एक बार बुक आउट कर लेना चाहिए निफ्टी में, अगर लॉन्ग हो, अगर आपने मस्त प्रॉफिट किया है। आई थिंक इट मेक सेंस टू बुक नाउ, बिकॉज लाइक देखो दो सिनेरियो हो सकते हैं। अज्यूम मार्केट गोज अप, ठीक है, तो एक और मंथ ऐसे आएगा, फिर एक और, फिर प्रोबेबिलिटी नीचे गिरने की और गिर जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, सॉरी, ठीक है। सो वो 2 months का अप मूव के लिए यू माइट लूज अ लॉट, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे आई फील इट्स वेरी डेंजरस इन निफ्टी फ्रेश लॉन्ग्स इनिशिएट करने को, राइट। सो फॉर मी दिस इज नॉट द टाइम टू इनिशिएट फ्रेश लॉन्ग्स। आई थिंक यहाँ पे एक बुक कर सकते हो आपका प्रॉफिट, इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रॉफिट 24,050 के आसपास। देन यू कैन ट्राई टू बाय इट ऑन अ डिप। डिप देखते हैं कितना डिप मिलता है हमको, बट यू मे ट्राई टू बाय इट ऑन अ डिप विच वापस विल टेक मार्केट अप, ठीक है। सो करंट मंथ कैंडल वी आर सीइंग एन अपर वीक आल्सो हियर, सो अपर वीक आल्सो इज नॉट अ ग्रेट साइन फॉर द बुल्स। वी डोंट नीड एन अपर वीक। अगर हमको बहुत बुलिश रहना है, दिस मंथ शुड क्लोज एट द हाईएस्ट पॉइंट, करेक्ट, बट दिस नॉट द केस। तो अभी देखो 11 दिन और बाकी है यहाँ पे, ठीक है। आई कैन सी 11 days more left. Cool. So if the market comes down, this month's candle will be a bearish candle then, which will be pretty bad for the market. Okay. So bearish candle के बाद either a pause comes or either market goes down most likely. So same in the weekly candle. What can you see? You can see that यहाँ पे it's a basically rejection candle. और ये perfect है, मतलब आपको देखो ये look at this thing. Market is going up and then it's making a same rejection candle like how it's doing now. ठीक है. So current week के low के नीचे if price triggers, I think a decent down move can happen in Nifty. Easily मतलब यहाँ पे 400-500 points का fall minimum कर सकता है वो. Cool. So this looks like a great scenario मतलब to short I think, or you know to at least avoid longs. Short पता नहीं है, I mean event है, but longs avoid करने चाहिए as of now लग रहा है ऐसे. Cool. So weekly chart doesn't look the greatest for the bulls. I think it looks better for bears. Okay, so daily candle में what can we see? We can see a basically bearish engulfing candle. इसको मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है like it's good to trade something bearish right now as per the daily chart. Correct? तो अपना view negate कब होएगा? तो निफ्टी में you can trade with a bearish view until 24,854 is taken out. And that is the only time जहाँ पे fresh momentum आ सकता है buying का. ठीक है? So I think this is given a bearish engulfing. Bearish engulfing में the shorting the market is great, I think so. And you can see the global markets right side पे US 30 400 point down, Dow Jones 370 points down. Okay, so India VIX भी बढ़ रहा है हमारा, which like points as to you know better for the bears rather than the bulls. So let's see अगर Monday को भी gap down होता है तो I think we should open down. And bearishness must continue then. Cool. So this is a bearish Marubozu. What do you have to do? You have to basically sell calls in this. Okay. Or buy puts. And the only time you can play bullish right now is 24,854 के ऊपर. If you get 2 15-minute candle closes above that. So 15-minute candle पे I can see this trend line. Okay. यहाँ पे I've connected this low to the previous low अभी जो बना था ना अभी. And I can see this trend line. So this trend line ऐसे लग रहा है यहाँ पे trend line breakdown हुआ है. Okay. So what we can do, this basically is another Q bearish खेल सकते हैं अभी, पर we need price to close below 24,500 अभी 15-minute candle में. Then what can happen? I can tell you easily market can come down to 24,144. ये 141 का जो level है, market उतना तो can come down only definitely. ठीक है, but with a condition we need a bearish candle opening like this, मतलब यहाँ पे नीचे close होनी चाहिए bearish candle. That's it.
और अगर आप सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखते हो, निफ्टी हैज बेसिकली ब्रोकन आउट हियर, गॉन अप, टेस्टेड दिस जोन, कम अप एंड इज टेस्टिंग दिस जोन अगेन, ठीक है। तो इफ इट कम्स अप एंड गोज डाउन, यहाँ पे ब्रेकडाउन अगर आ जाता है, ठीक है, तो देन ये भी काफी बेरिश रहेगा सिनेरियो, मतलब, ठीक है। बट एज ऑफ नाउ वी कैन प्ले बुलिश अबव दिस प्रीवियस 2 days हाई, ठीक है, इसके ऊपर बुलिश खेलेंगे हम, और तब तक के लिए ऑन अ फ्रेश बेसिकली सपोर्ट ब्रेक वी कैन प्ले विथ कॉल सेलिंग हियर इन निफ्टी। तो कूल, आई जस्ट समराइज, मतलब, so in Nifty basically weekly candle, it seems like it can form a top, okay, the weekly one. The daily one, it's a bearish engulfing, so looks good for the bears. And 15-minute time frame पे there's a trend line break and we need price below the last 2 days low, okay. Then if that happens, पक्का bearish खेल सकते हैं, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए फिर ज्यादा। And as always we can go wrong, so अगर हम wrong जाते हैं, then where can we initiate fresh bullish trades? We can initiate them above today's high, okay? Because then market will touch 80H and 80H पे never can you short the market again. Cool. So I think that's it from this video and keep an eye out. कल एक मस्त video लाएगी निकिता and she'll come out with a video on budget. Okay? So we'll see you very soon. Okay? Bye bye. Take care.